Hi everybody, hope you all are doing great and welcome to a new video. आज है 17th of September and it's 10:30 AM and काफ़ी सारे दिनों के बाद मैं एक लॉन्ग फॉर्मेट हॉरिजॉन्टल वीडियो शूट कर रहा हूँ because in the past few days I've been making more of short vertical videos as a part of the 30 days veg diet series जो मैंने किया था. Speaking of the veg diet series, रोज़ मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा था about my workout, training, diet and I was eating veg food for 30 days and I documented it, and that was also because it was the month of Shravan. Then the Ganpati festival came, so I continued to follow veg diet, and in fact today is the last day of the Ganpati festival. It's the Ganpati Visarjan day and कल से हम एक normal diet follow करेंगे. Speaking of the veg diet, I feel उसके काफ़ी सारे advantages है. एक ये है कि आपका gut health improve होता है, then you feel light and energetic throughout the day. And plus I feel that it's very much possible to create a good physique even with a veg diet अगर आप आपके protein goal को hit कर पाओ, and it's very much possible to hit your protein goal with a veg diet. You can rely on food sources like I was relying on paneer, tofu to hit my protein goal. So speaking of the veg diet series, I was creating one video each day for 30 days and I शूट एंड एडिट माई ओन वीडियोज़. सो थोड़ा हेक्टिक हो गया था रोज़ एक वीडियो अपलोड करना, एंड डेफिनेटली आई एन्जॉय द जर्नी एंड द प्रोसेस बिकॉज I got to learn a lot and it got my fitness and my work much more on track and I became much more consistent with it. But I felt that कि बहुत hectic हो रहा था because balancing it out with my daily life's work schedule was a bit difficult. So I've decided कि मैं week में एक दो horizontal and vertical videos upload करूँगा, more like episodics. And also because I started this content creation journey because being an actor and working in film production and distribution, I have that creative side as well, so I wanted to put that to use, and I thought that video creation would be great. So in a way content creation is because I'm enjoying it as well and also I'm documenting my journey, but I don't want to do it with so much pressure कि मैं रोज़ एक video upload करना है etc. But yeah, that was just I just wanted to try it out. तो वेज डाइट सीरीज़ के बाद मैंने ऑलमोस्ट 3 to 4 days का ब्रेक लिया. फिर 1 week आई डिड अ डी रोड वीक एंड देन 1 week आई वाज ट्रेनिंग हाई वॉल्यूम लो रेप्स, जिसमें आई वाज लिफ्टिंग द वेट, जिसमें द अमाउंट ऑफ वेट दैट आई वाज लिफ्टिंग वाज अराउंड 70% ऑफ द वेट दैट आई यूजुअली लिफ्ट फॉर 6 to 8 reps only because I want to focus more on mind muscle connection and technique and form. And now I'm back to my normal training routine. सो आई हैव ऑल्सो चेंज माई स्प्लिट, जिसके बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूँगा, एंड मैक्रोज के बारे में भी और डिटेल में मैं अगले वीडियो में बात करने वाला हूँ. सो द ट्रेनिंग इज़ गोइंग गुड एंड आई जस्ट होप टू कीप ग्रोइंग. एंड अभी मिलते हैं जिम में. आज जिम सिर्फ 6 AM to 2 PM खुला है. इट्स ऑलरेडी 10:30 एंड आई बी हैविंग अ प्री वर्कआउट मील एंड लीविंग फॉर द जिम. एक और चीज़ कहना था दैट बिकॉज ऑफ क्रिएटिंग अ वीडियो एवरी डे, since I would shoot and edit my own videos, I would end up sleeping very late. So obviously I would get up late. So ये जो system create हो गया of getting up at around 9:30, 10, that is because of the 30 days का veg diet series जो एक I feel that was the only disadvantage of that series. But we'll gradually be getting back to a better sleep schedule wherein I'm going to try and go to sleep by 11 PM every day, ताकि और साउंड स्लीप मिले, रिकवरी बेटर हो, एंड ऑल्सो इट विल हेल्प मी टू गेट अप अर्लियर एट अराउंड 7 AM. हाउएवर आई फील कि ये जो सिस्टम्स है काफ़ी ऑर्गेनिकली क्रिएट होते हैं. इट्स क्वाइट सब्जेक्टिव ऑल्सो. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप 4 बजे उठ के ही मतलब आपके सारे दिन के टास्क करोगे. इवन इफ यू आर गेटिंग अप अ बिट लेट बट यू आर एबल टू डू योर tasks and of the day and get your work done and be productive in the day. And if it's working out for you, it's great, continue. However, I feel that for me, like getting up slightly earlier, like around 7-8 AM works better because I get that little bit of extra time in the day. तो वो भी gradually होगा. Immediately I won't jump into getting up early because then उस दिन पे रिकवरी नहीं होगी, ट्रेनिंग भी अच्छे से नहीं होगा, एंड आई डोंट वांट टू अननेसेसरली गेट अप स्लीप लेट एंड गेट अप अर्ली एंड सैक्रिफाइस माई रिकवरी. सो ग्रेजुअली वील बी चेंजिंग दैट स्लीप साइकिल एंड स्केड्यूल. तो लेट्स सी, अभी जाते हैं, अभी प्री वर्कआउट मील खाते हैं एंड लेट्स गो टू द जिम. सो प्री वर्कआउट मील के लिए मैं ले रहा हूँ चॉकलेट ओट्स विद अ पीनट बटर सैंडविच एंड अ लिटिल बिट ऑफ प्रोटीन शेक. तो सुबह सुबह प्रोटीन
का कोई भी फूड सोर्स कंज्यूम करने से आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस बेटर होता है. एंड वर्कआउट के पहले आई वुड ऑलवेज हैव जस्ट पीनट बटर सैंडविचेस विच इज़ of bread and peanut butter, and that is usually simple carbs and fat. However, oats is a complex carbohydrate, and having complex carbohydrates before your workout is a better workout fuel than a simple carb. तो यहाँ पे हम दोनों मिक्स कर रहे हैं, but however try and have complex carbs जैसे कि oats हो गए, sweet potatoes हो गए before your workout. That will give you more energy. So I'll be starting my workout with triceps, and I'll be doing 8 sets per muscle, so total of around 16 sets हम एम करने वाले हैं. ट्राइसेप्स के साथ मैं फ्रेश स्टार्ट करना चाहता हूँ. So basically I've completed one set of the cable push down, and I don't think so मैं पूरा वर्कआउट रिकॉर्ड भी कर पाऊँगा बिकॉज आज गणपति विसर्जन है, एंड इट्स लाइक it just open from 6 AM to 2 PM, and it's already 11:50 and it's a bit crowded as well. So we'll go on to the second set and let's see how that moves. जो cable push down है, so whatever growth I've got in my triceps is by reducing the weight by a bit, क्योंकि केबल पुश डाउन या केबल ओवर हेड ट्राइसेप एक्सटेंशन पे पूरा हैवी करके उतना मसल ग्रोथ कभी आया नहीं है. इनफैक्ट टाइम अंडर टेंशन वर्क्स बेस्ट फॉर मी, एंड इट गिव्स मी दैट कंट्रोल ओवर दैट सेट, एंड माइंड मसल कनेक्शन होना ज़रूरी है. सो ये सारी चीज़ों के लिए यू हैव टू रिड्यूस द वेट अ बिट एंड ट्रेन अराउंड योर PR एंड नॉट ऑलवेज ऑन योर PR. तो देखते हैं, अभी सेकंड सेट करते हैं. सो वन ऑफ द रीजंस कि मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ इज़ बिकॉज जिम में म्यूज़िक बंद है. सो बहुत सारे दिन से आई डोंट नो, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग म्यूज़िक एंड आई डोंट नो द रीज़न, बट वही है. सो इट्स स्लाइटली मोर पीसफुल, बट आज थोड़ा क्राउडेड है. एंड या सो केबल पुश डाउन का एक सेट लेते हैं विथ 50 kgs. एक्चुअली आज जिम इतना क्राउडेड हो गया था कि
मैं बहुत सारा वर्कआउट फुटेज रिकॉर्ड नहीं कर पाया एंड फ्लेक्सिंग फुटेज भी नहीं ले पाया, बट दिस इज़ समवॉट वॉट द बॉडी कंडीशन इज़ इन नेचुरल लाइटिंग. कुछ ज़्यादा लाइटिंग नहीं है, बट स्टिल लाइक यू कैन सी एब्स आर स्टिल विजिबल. ऑफकोर्स अभी सरप्लस पे खा रहे तो थोड़ा सा फैट पुट ऑन होगा, बट व्हेन वील कट डेफिनेटली वो सब बैलेंस आउट हो जाता है. एंड एज यू कैन सी द मसल साइज मतलब हैज़ डेफिनेटली इंक्रीज्ड. यू नो, हर एक मसल ग्रुप का साइज इंक्रीज हुआ है बिकॉज सरप्लस में हम हमारे लिफ्ट्स पे भी काम कर रहे हैं. वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इंक्रीजिंग आवर नंबर्स, आवर कैलोरीज हैव इंक्रीज्ड. इवन कार्डियो धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे एंड कार्डियो पे भी हम ज़्यादा फोकस करने वाले हैं. वील बी डूइंग 10 to 15,000 स्टेप्स अ डे ताकि हम फैट को कंट्रोल कर पाएँ. टुडे आई एम रनिंग अ बिट लेट, सो मुझे जल्दी से अपने मील्स बनाना है. I have to eat that and then continue with the rest of the task for the day. So see you all.